So, welcome back class into your new video of your science chapter, which was conservation of plants and animals. So we have already discussed many classes. We have covered 3 classes about this chapter, and this one is your fourth and last class of this chapter. So in this class we will discuss the remaining concepts which are remaining. So let's start today's class. So the name of the chapter is conservation of plants and animals. We will start today's class with the first concept, which is threatened species. What are and who are threatened species? What kind of species are called threatened species? Okay. So species which are greatly reduced in number due to disturbance in their habitat. Okay, so what happens is some species got the disturbance in their habitat. It means उनके जो रहने के कंडीशंस हैं वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, कहने का मतलब ये है, हैबिटेट मीन्स रहने के कंडीशंस. ओके, सो रहने के कंडीशंस अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका अगर ज़्यादा हंटिंग होने लगेगा या टेम्परेचर चेंज होगा इन्वायरमेंट का, या फिर फूड स्कैरसिटी होगी, ये सारे रीजंस हो सकते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ हैबिटेट के. ओके, सो अगर ऐसा होता है तो स्पेसीज का पॉपुलेशन ऑब्वियसली क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो तेज़ी से मरने लगेंगे या फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. दिस आर द थिंग्स. सो दिस species are called threatened species. Okay, now write down about the next concept, which is rare species. So rare species are those species which are found rarely. बहुत कम पाए जाते हैं, इनका नंबर बहुत कम होता है. That's why we call it rare species. So write down. These species have small population scattered in different regions of the world. So these species are very rarely found. बहुत कम पाए जाते हैं, इनका नंबर पॉपुलेशन बहुत स्मॉल होता है एंड ये पाए जाते हैं बहुत अलग अलग जगह पे. ओके, सो दीज आर कॉल्ड रेयर स्पीसीज. Note this thing, then we will move forward to our next concept. So next concept is vulnerable. Vulnerable species.
What kind of species will be called as vulnerable? Vulnerable मीन्स ऐसे स्पीसीज जो नियर टाइम में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. इट मीन्स कि उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है या उनके पॉपुलेशन में डिक्रीज आ रहा है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज, सॉरी vulnerable species. So write down species which are likely to move into endangered category in near future are known as vulnerable species. ओके तो ये होते हैं vulnerable species. ओके, vulnerable species means ऐसी स्पीसीज जो नियर टाइम में क्या हो, नियर टाइम में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या फिर नियर टाइम में इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आने वाले. इट मीन्स कि उनके पॉपुलेशन में डिक्रीज अगर पाया जाता है तो उन्हें वल्नरेबल स्पीसीज के कैटेगरी में हम डालते हैं. ओके, सो दीज आर कॉल्ड वल्नरेबल स्पीसीज. नोट दिस कॉन्सेप्ट. देन coming forward to the next concept, which is migration. What is migration? You must know. So migration is done by the animals time to time. You can see seasonally, they periodically season by season वो migration करते हैं. एंड माइग्रेशन का मतलब होता है फूड के लिए, हैबिटेट के लिए या सही टेम्परेचर के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं. तो माइग्रेशन क्या है? फूड के लिए, टेम्परेचर के लिए या फिर सही हैबिटेट के लिए. यू कैन से कि अगर उन्हें अपने यंग वंस को जन्म देना होता है तो वो एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन का ये भी रीज़न हो सकता है कि उनको फूड की कमी हो रही है एंड वो ऐसे जगह जाएंगे जहाँ फूड उन्हें सही अमाउंट में मिले, या फिर पानी की तलाश में वो माइग्रेशन करेंगे. सो माइग्रेशन इज़ नथिंग बट अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, हैबिटेशन और accurate temperature. Okay, so these are the factors of migration. So let's write about migration first. It is a regular, periodic movement of animals and birds for the purpose of favorable habitat it is done for the search of number 1 food, number 2 accurate weather, number 3 for safe place. सेफ प्लेस के लिए. सेफ प्लेस वो क्यों ढूंढेंगे? सेफ प्लेस फॉर एग्जांपल पोलर बियर एक सेफ प्लेस पे जाके माइग्रेट करता है, वो महीनों तक सोता रहता है, तो वो एक सेफ प्लेस पे जाके वो माइग्रेट करेगा, वो सही जगह पे जाके सोएगा. सेफ प्लेस इसलिए भी ढूंढते हैं ताकि वो अपने यंग वंस को एक सेफ जगह पे जन्म दें जहाँ पे वो अच्छे से बड़े हो सके. ओके, सो दीज आर द रीजंस ऑफ माइग्रेशन. नोट दिस थिंग.
And now the last point about this chapter is recycling of paper. Recycling of paper क्यों करते हैं, होता क्या है? These are the things. Note this thing. So last point is recycling of paper. Waste papers can again be used by a process which is called recycling of paper. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है? अगर पेपर को हम उसको इस प्रोसेस, एक पेपर को अगर हम इस तरह से प्रोसेस करें कि वो फिर से रीयूजेबल हो जाए, उसको हम फिर से यूज़ कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. ओके, ये तो समझ आ गया. लेकिन हम करते क्यों हैं? तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पेड़ नहीं काटना पड़े, पेड़ कम से कम कटें, तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, दैट इज़ द मेन रीज़न टू स्टॉप द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अगर पेड़ बचेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा. सो राइट डाउन, इट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट trees and for the protection of environment. Environment. So these are the reasons. Okay, so write this thing. We have completed this chapter very well. Now you have to revise this and make your notes very well. Thank you, class. और खींचे वाला बोर्ड है ना।